Good morning, my dear children. Today we'll discuss about chemical properties. So first I will discuss about chemical properties of metal. Okay. So in chemical properties, what we have to see in this topic: reaction with oxygen, reaction with water, reaction with acid, reaction with base, and reaction of metal with some other non-metals. So today we'll discuss about reaction of metal with oxygen. Easy lesson, easy topic. Let's see what happens when metal react with oxygen. Children, already you have studied in the 8th standard. When metal react with oxygen, metal oxide will be formed. So formula will be when metal react with oxygen, metal oxide will be formed. Let's see some example. When sodium, बेटा आपके बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. ओके, सो वो जो रिएक्टिविटी सीरीज दिया है, प्लीज प्रिपेयर इट. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस. Here first I will discuss here sodium and potassium. Sodium and potassium are the most reactive metals with oxygen. अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में जस्ट एक्सपोज करेंगे, इट विल रिएक्ट विद द एयर. ऑक्सीजन मीन्स एयर, ऑक्सीजन मीन्स एयर, जो एयर में ऑक्सीजन है उससे. ओके, so it will react with oxygen and it will catch fire. That's why sodium and potassium are stored in a kerosene. ये चीजें भी याद रखना है. सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव विथ एयर और ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई इट इज स्टोर इन kerosene. When sodium, why I have written here 4 for the balancing. आप डायरेक्टली लिख के फिर भी बैलेंस कर लेना, क्योंकि इक्वेशन इज ऑलवेज इन बैलेंस फॉर्म. ओके, नाउ इट इज बैलेंस्ड. दैट इज बेसिक ऑक्साइड. मेटल ऑलवेज फॉर्म. Metal oxide is always basic in nature. Okay, metal oxide is basic in nature and non-metal oxides are acidic in nature. It's mean that when metal oxide react with water, it will form a base. ये basic nature है, means water से react करेगा तो base form करेगा. Similarly, potassium. Okay, so potassium react with oxygen will form potassium dioxide or potassium oxide. That is metal oxide. Metal react with oxygen, form metal oxide. I will give you some more examples. It will form the basic oxide. There are 2 type of base. One base which is dissolved in water and one base which is insoluble in water. जो बेस वाटर में डिजॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं अल्कलीज. ये दोनों अल्कलीज है. ये जो बेस फॉर्म करेगा वो अल्कलीज फॉर्म करेगा. ये चीजें भी आप याद रखो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स. दीज मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड इन एटमॉस्फेयर, दे विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन वेरी रैपिडली. ये बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं. See another examples. Okay. See what about aluminium? When aluminium
नाउ बैलेंस इट. एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिस फॉर्मूला इज Al2O3, तो फॉर्मूला Al2O3 ही रहेगा, बट आपको बैलेंस करना है. ओके, दैट इज सॉलिड, गैस एंड metal oxide, or it is basic in nature. So basic oxide, that is metal oxide. Okay beta, so aluminium react with oxygen to form aluminium oxide. But beta, one thing you have to note it down. Let's see और example, फिर आगे बात करते हैं. When magnesium react with oxygen, it will form magnesium oxide, that is also a basic in nature. But these are not alkalis. ये basic oxide तो है, but ये insoluble होते हैं, मतलब ये alkalis नहीं होते but base होते हैं. As well as zinc. What happen when zinc react with oxygen? Zinc जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा? उसके लिए आपको जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए. जिंक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा बेटा ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म होगा? जिंक ऑक्साइड. एंड दीज आर नॉट मच रिएक्टिव देन, उतना रिएक्टिव ये नहीं होते जितने सोडियम एंड मैग्नीशियम पोटेशियम होता है बेटा. ये जो एल्युमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम, ये जो होता है कब रिएक्ट करते हैं? ऑन हीटिंग. ये चीजें भी याद रखना एमसीक्यू के लिए. वो डायरेक्ट रिएक्ट कर जाते हैं एयर के साथ, ये तब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑन हीटिंग. हीट करने के बाद तो क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तब ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. इट्स मीन दैट वो डायरेक्ट रिएक्ट कर रहे हैं व्हेन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर एंड इट रिएक्ट्स ऑन हीटिंग. हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ ही बर्न होता है कोई चीज. ओके बेटा, सो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को, यू हैव सीन इन द फर्स्ट लेसन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर. ये बेसिक है बट कुछ और चीजें, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है बेटा. Why I have put in the bracket aluminium and zinc not only formed basic oxide, it formed acidic oxide as well. Means beta, all metals are not formed basic oxide. मेटल ऑक्साइड्स जो होती है वो सभी बेसिक नहीं होती है. एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड आर हैव acid as well as base, both behavior, and these are known as amphoteric oxide. What? Amphoteric oxide. Amphoteric means what? Aluminium oxide and zinc oxide are amphoteric oxide. Amphoteric oxide means when it react with acid, it will form salt. When it react with base, it will form salt. It's mean that it has acidic and basic both behavior. जो मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड दोनों बिहेवियर शो करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. इज इट क्लियर? इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था दैट मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, वो जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वो बेसिक होता है नेचर में, मतलब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो उससे बेस बनेगा. एंड ये जो ऑक्साइड्स है ये एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड दोनों नेचर शो करता है. कैसे? लेट्स सी. आई विल गिव यू एग्जाम्पल. चलो एल्यूमिनियम का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं. Al2O3 हमने बोला इसके पास एसिडिक बिहेवियर भी है और बेसिक बिहेवियर है. अगर इसके पास एसिडिक बिहेवियर है
तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा। अगर इसके पास बेसिक बिहेवियर है तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। वी नो दैट एसिड रिएक्ट विथ बेस और बेस रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म सॉल्ट। अंडरस्टूड बेटा? इज इट क्लियर? इसके पास एसिडिक, ये एसिडिक ऑक्साइड भी है, बेसिक भी ऑक्साइड फॉर्म करता है। चलो यहां पे हम मान लेते हैं कि ये बेसिक ऑक्साइड है। When it react with acid, यहाँ पे हम अगर इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, ये क्या है? एसिड। When aluminium oxide react with acid, what will happen बेटा? Aluminium chloride is salt as well as water will form, that is salt. एसिड किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है? बेस या बेसिक ऑक्साइड के साथ। तो इसका मतलब इसके पास बेसिक प्रॉपर्टी तो है। चलो एसिडिक प्रॉपर्टी भी चेक करते हैं बेटा। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। ऑक्साइड है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, और अब बोल रहा है इसका नेचर एसिडिक होगा और बेसिक दोनों है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये चीजें याद रखना, इन एग्जाम कैन बी आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज नथिंग बट ऑक्साइड विच हैव डुअल नेचर, डुअल बिहेवियर लाइक एसिडिक एज बेसिक एज वेल। ओके, सो अगर इसको हम बेस के साथ रिएक्ट कराए, एसिड के साथ रिएक्ट कराए तो सॉल्ट फॉर्म हुआ। क्या बेस के साथ रिएक्ट कराने पे भी सॉल्ट फॉर्म होगा? दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सो हियर बेस रिएक्ट विथ बेस, को बेस से तो रिएक्ट करेगा नहीं, और अगर बेस बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट कैसे बनेगा? सॉल्ट तभी फॉर्म होगा जब एसिड हो बेस के साथ में। ओके, सो एसिड, यहाँ पे हम मानते हैं कि ये एसिडिक ऑक्साइड। लेट्स सी दो बोथ बिहेवियर यहाँ पे है। बेसिक बिहेवियर, एसिड से रिएक्ट किया तो सॉल्ट, और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है तो भी सॉल्ट बन रहा है। हाँ, दैट इज ALO2 सॉरी 2NaAlO2 प्लस वाटर, क्योंकि वाटर भी साथ में फॉर्म होगा बेटा। फर्स्ट वी विल चेक दैट बैलेंस और नॉट। 2 एल्यूमिनियम 3 वाटर 5 वाटर 4 वाटर प्लस सॉरी ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 5 2 2 जा 4 प्लस 1 5 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन सोडियम इज 2 बैलेंस्ड। 2NaAlO2 इसको हम क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे बेटा? दैट इज नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ये सिंपल सॉल्ट फॉर्म हुआ था, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है बट इट इज ए सॉल्ट। तो ये एग्जाम्पल जो दो इक्वेशन है आपको हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि इसके पास एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। सिमिलरली जिंक के साथ भी जाएंगे तो जिंक भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, अगर सपोज तो जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट फॉर्म कर देगा। सोडियम जिंकेट इज ऑल्सो बेस। ओके, सो ये रहा मेटल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। इसके अलावा बेटा हमने कुछ रिएक्शंस देखा किसमें? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम। इसके अलावा भी जो मेटल्स होते हैं जो थोड़ा लोअर ऑर्डर, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे रिएक्टिविटी सीरीज में वो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर। आयरन एंड कॉपर कब रिएक्ट करता है? वेरी स्लो रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। जैसे रस्टिंग का फॉर्मेशन होता है तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके साथ रिएक्ट करता है बट वेरी स्लोली।
और नीचे जाएंगे तो मेटल्स में नीचे आएंगे गोल्ड सिल्वर उधर, तो रिएक्टिविटी बहुत ना के बराबर हो जाती है। इन नेक्स्ट वीडियो बेटा विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन विथ वाटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नो नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग, क्योंकि ये बहुत ईजी है, थोड़ा भी देखोगे तो आपको आएगा बेटा।